Hi everyone, good evening, and welcome to Deep Pocket Funds. In my recent video, I've shared that market might try to approach the higher level, which was 24,914 and 24,989. And I have also mentioned that if we see anything below this, then I'm going to exit my longs. So, but I analyzed the situation yesterday when we saw a gap down opening, and I've updated in the Telegram group also that I'm still intact with the view of 24,914, which was this, and I'm not interested in shorts. Still holding longs and looking for adding more in the range of 22,000 to 22,200, which was this. And when the market was in panic on Thursday, which was yesterday, most of the trader who have gone in long side trade on Monday or on Wednesday on this level, they were in panic and they were exiting. Also, many of you, considering the Trump speech and the gap down, were trying to make the short side position. But still, I was holding my long side, and I said I'm not interested in short because see, there are few things you need to understand. First, any movement based on news, considering the kind of fake news we are listening every day, and especially from US. So you should first analyze that. We have seen that Trump is already contradicting with his own statements of war, and there were also few reasons why I didn't exited my longs, and I was so sure with the conviction that market will bounce. So first thing was this low. I've updated in the group also. This was monthly low of March 2026. Price opened somewhere here, went down, grab the liquidity of monthly low, right? Many of you will get trapped because in panic you have exited your longs and made the short side positions, and which was enough for the FIs and big players, right? Secondly, you see, we'll try to understand from higher level to the lower level. So if you see on monthly time frame over here, we have this wick, which I've already updated in my last post. If you see, go if you check the Telegram, you'll find a chart where I've marked the high of this week, the mid of this week, and the low of this week, and the other quadrant also, right? So this wick also act as an inefficiency. Now, why we treat this as an inefficiency? You see this price action यहाँ पे प्राइस ने क्या किया डाउन मूवमेंट दिया, राइट? और उसके बाद यहाँ पे प्राइस में एक अप मूवमेंट हुआ. अब ये पूरी प्राइस डिलीवरी को होने के लिए 2 महीने लग गए. प्राइस में डाउन साइड क्या सेल डिलीवरी एंड बाय डिलीवरी के लिए. बट इफ यू सी दिस यहाँ पे यू हैव दिस फास्ट रिएक्शन जिसको हम लोग हाई विक इम्बैलेंस भी बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ है एक सडन अप मूवमेंट आया जिसकी वजह से यहाँ पे एक विक बन गई. और ऐसी जो विक बनती है उसको भी तो वो एक हिडन इम्बैलेंस होता है. इट एक्ट एज एन इनफिशियंसी. इसको गैप की तरह ही ट्रीट करते हैं. जैसे हम लोग वॉल्यूम इम्बैलेंस जैसे यहाँ पे बन गया ये गैप है, इस तरह से ये विक को भी हम लोग एज ए गैप ही ट्रीट करेंगे. तो ये प्राइस जो होता है पार्शियली रीबैलेंस करने आता है. व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियली रीबैलेंस? इसका जो मिड पॉइंट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो हमारा कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट होता है. देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस इसके मिड पॉइंट तक आने के बाद वहाँ से एक बाउंस देगा हमें, जो यहाँ पे भी हमें देखने मिला. ठीक है, ये मिड पॉइंट के पास से. द सेकेंड रीज़न वॉज यहाँ पे इफ यू सी वी हैव दिस एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड वी हैव दिस इंटरनल लिक्विडिटी, राइट? प्राइस ने क्या किया ऑलरेडी इंटरनल लिक्विडिटी ले लिया है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है. तो देयर आर वेरी लो चांसेस कि प्राइस इस लिक्विडिटी के लिए जाएगा फिर से, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके ही अपसाइड मूवमेंट दिया है. और ये वाली जो लिक्विडिटी है ये हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है. ठीक है, प्राइस अभी एक बुल रन में है. ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश है प्राइस एक्शन पूरा.
तो इसके हंट होने की प्रोबेबिलिटी भी कम है until unless we get bearish from here. सो ये हमारे लिए जो था प्रोबेबिलिटी अभी के लिए निगेटिव है कंसिडरिंग द प्राइस एक्शन। अब रही बात इस लिक्विडिटी की, तो ये ऑलरेडी टेकन आउट है। तो अभी हमें इंटरनल लिक्विडिटी दूसरी कहाँ मिलेंगी, वो हमें इस वीक में मिलेंगी फ्रॉम दिस टू दिस जोन। ठीक है, ऑलरेडी ये लो ले चुके हैं, तो ये लो के पहले जितनी भी इंटरनल लिक्विडिटी रहेंगी हम लोग उनको फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए वील हैव टू मूव ऑन अ वीकली एंड अ डेली टाइम फ्रेम। पहले वीकली टाइम फ्रेम पे समझते हैं। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ये गैप था, राइट, जो फिल हो चुका था। यहाँ पे अगेन मैंने कहा कि यहाँ पे प्राइस आया इस तरह से, और प्राइस ने क्या किया, ये लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। तो ये लिक्विडिटी हमारे लिए अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ वी हैव टू मूव ऑन लोअर टाइम फ्रेम विच इज़ डेली। नाउ इफ विल सी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, व्हाट यू सी, वी हैव अ इम्बैलेंस ओवर हियर। रिवर्स में मार्क कर लो इस तरह से, राइट। ये एक इम्बैलेंस है। उस इम्बैलेंस में अगर मैं जूम आउट करके यहाँ पे अच्छे से देखूँ, इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर इस इम्बैलेंस में अगर हम गौर से थोड़ा ऑब्जर्व करें, व्हाट यू कैन सी कि प्राइस में मंडे के दिन गैप डाउन ओपन होने के बाद एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट को टैप किया, तो यहाँ से हमें एक बाउंस देखने मिला, राइट। प्राइस वापस से नीचे हुआ, नीचे आने के बाद प्राइस ने क्या किया, इसकी लो की लिक्विडिटी ग्रैब की, लोअर क्वाड्रेंट को टैप किया, बट इट फेल टू क्लोज बिलो दिस मिड पॉइंट, राइट। अब प्राइस क्या किया, वापस से इस पूरे इम्बैलेंस के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। प्राइस जब तक इस मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज करता है या ऊपर ट्रेड करता है, तब तक डाउन साइड का व्यू मत रखिए कि प्राइस के नीचे जाएगा। हाँ, अगर प्राइस कोई भी ट्रेडिंग सेशन में इसके नीचे इस तरह से क्लोजिंग दे देता है या इधर क्लोजिंग दे देता है, देन वी कैन सी कि प्राइस अभी लोअर लिक्विडिटी की तरफ जा सकता है। जब तक नहीं, तब तक इसके ऊपर आप एक्सपेक्ट मत करो कि प्राइस नीचे जाएगा। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई शो यू, पहले इसको हटा देते हैं। यहाँ पे व्हाट यू कैन सी इज आफ्टर टेकिंग आउट दिस लिक्विडिटी, यहाँ पे एक इम्बैलेंस था डेली टाइम फ्रेम पे, राइट। प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी लेने के बाद पहले एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लिया लोअर टाइम फ्रेम की, और ये जाके अभी इसने इंटरनल लिक्विडिटी भी टैप करके प्राइस ऊपर जाके क्लोज कर दिया, राइट। नाउ अगर ये वीकेंड पे लॉन्ग वीकेंड है, अगर कोई भी सीज फायर की न्यूज़ या फिर वॉर एंड की न्यूज़ अगर आती है, डेफिनेटली फिर हमें मौका नहीं मिलेगा, प्राइस शायद गैप अप खुल के ही अपसाइड चला जाएगा, देयर हाई चांसेस। अगर सपोज कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती है, स्टिल मार्केट इसी जोन में रहता है, फ्लैट ओपन करता है, देन यू स्टिल हैव अ अपॉर्चुनिटी। अगर प्राइस यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर एक पुल बैक देता है इस मिड पॉइंट के आसपास, राइट, तो यहाँ से आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, फर्स्ट इज गोइंग टू बी दिस हाई, सेकंड दिस हाई, जो यहाँ पे गैप बना हुआ है, दिस, राइट। ये जो गैप है यहाँ पे, इस गैप तक का आप टारगेट प्लान कर सकते हो ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। कंसिडरिंग द रिस्क एंड द न्यूज़ इवेंट्स एंड एवरीथिंग, मार्केट में अच्छा हमें मोमेंटम मिल रहा है, बड़े रेंजेस मिल रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप बड़े टारगेट प्लान करो, ठीक है। छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ आप बड़े बड़े ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। पर्सनली मेरा व्यू है 24914, विच इज़ दिस वन। मैंने कल भी बताया था, आज भी मैं वही चीज़ बोलूँगा कि पर्सनली मैं 24914 के लिए वेट कर रहा हूँ, और 24989। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लो टाइम फ्रेम पे एक रिलेटिवली इक्वल हाई है। सेकेंडली यहाँ पे हमारे पास मंथली हाई है, प्राइस के हाई चांसेस है। सेकेंडली यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी है ये स्विंग हाई पे, ठीक है। ये सारी लिक्विडिटी प्राइस हंट करेगा, और ये हंट काफ़ी फास्ट होने वाला है, काफ़ी क्विक होने वाला है। एक गैप अप ओपन करके एक बड़ा मूवमेंट दे सकता है, 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1500 पॉइंट, ये सारे मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अब अपसाइड का जो मूव आएगा वो काफ़ी फास्ट होने वाला है। और उसके बाद अगर कोई भी न्यूज़ क्लब अप होती है, कोई भी सीज फायर की या वॉर ख़त्म होने की, तो ये मूवमेंट ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा, राइट।
अगर नहीं होता है स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मंथ में और स्पेशली इनिशियली 2 हफ्तों में अप्रैल के हमें ये लेवल देखने मिल सकते हैं। ठीक है। सो नाउ हाउ वी कैन प्लान अ ट्रेड ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम उसको समझते हैं। डाउन साइड पे मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूँ, मैंने बता दिया कब मैं डाउन साइड पे इंटरेस्टेड रहूँगा। जब प्राइस में हमें डेली टाइम फ्रेम का जो इम्बैलेंस हमने मार्क किया था अगर प्राइस उसके नीचे जाता है, या फिर शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए भी मैं शॉर्ट कब प्लान करूँगा जब प्राइस इसके नीचे ट्रेड करके इसको रिस्पेक्ट करता है और डाउन साइड का कंटिन्यूशन देता है, तब मैं डाउन साइड की ट्रेड प्लान करूँगा। जब तक प्राइस इसके ऊपर है मैं कोई भी बेरिश ट्रेड प्लान नहीं करने वाला। अब समझते हैं कि अगर फ्लैट ओपन होता है प्राइस तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली द लॉन्ग साइड व्यू बिकॉज पर्सनली मेरा व्यू बुलिश है। शॉर्ट साइड का ट्रेड अगर कभी बनता है, सिचुएशन कभी इस तरह से होती है, तो हम लोग लाइव मार्केट में उसको देखेंगे कैसे हैंडल करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाई है, यहाँ एक हाई है विच इज़ रिलेटिवली इक्वल हाई। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है यहाँ से, ठीक है, इस जोन से हमें एक बाउंस देखने मिलता है, डेफिनेटली हम लोग ये हाई और ये हाई जो है इस सारे हाई तक की लिक्विडिटी के लिए हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं इंट्राडे बेसिस पे बता रहा हूँ, या शॉर्ट ट्रेड जो जिनको छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने हैं। ठीक है, यहाँ से आप फिर एक पुल बैक का वेट करो, फिर से आप एंट्री बना सकते हो अगर प्राइस में फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो। अगर मार्केट गैप अप ओपन करता है, गैप अप ओपनिंग के चांसेस कहाँ कहाँ के देखो हम लोग उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गैप अप 500 पॉइंट भी खुल सकता है, 1000 पॉइंट भी खुल सकता है, कंसिडरिंग कि किस अकॉर्डिंग न्यूज़ आती है। अगर प्राइस इन सब जोन के आसपास ओपन होता है, यहाँ कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि वेट करना, सीधा लॉन्ग में नहीं बैठना। यहाँ मेरे पास लिक्विडिटी है, प्राइस शायद फर्स्ट हाफ में अपसाइड जाके लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर एक पुल बैक दे सकता है जहाँ से आपको एंट्री बनाने मिल जाए, या फिर प्राइस बिना लिक्विडिटी लिए, अगर बिना लिक्विडिटी लिए आता है तो और भी अच्छा है। सपोज समवेयर यहाँ से ये लिक्विडिटी के थोड़ा नीचे से अगर प्राइस घूम जाता है तो हम लोग जो हमारा गैप ओपनिंग का जो रेंज होता है उसके मिड पॉइंट को मार्क करेंगे। प्राइस अगर उसके आसपास आके हमें मिलता है, वहाँ से हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे इस हाई के लिए या उसके ऊपर के लिए। अब ये हो गया इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए जो पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहते हैं, अगर जिनका मिस हो गया है। ठीक है, मैं ऑलरेडी बैठा हूँ, मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ ऐड की है, कुछ यहाँ ऐड की थी, यहीं पे एवरेज था, और कुछ मैंने यहाँ ऐड की है, तो मेरा एवरेज यहीं पर ही चल रहा है अभी भी। ठीक है, बहुत बड़े प्रॉफिट्स में भी नहीं हूँ मैं, बट मैं बहुत बड़े लॉसेस में भी नहीं हूँ, तो आई एम बैलेंसिंग इट। सपोज प्राइस अगर नीचे जाता है तो इस लो के नीचे मैं एग्जिट भी करता हूँ तो छोटा मोटा लॉसेस में एग्जिट मिलेगा मुझे। अगर आपको पोजिशनल यहाँ से बनानी है पोजीशन, ठीक है, तो मार्केट सेम चीज़ करना, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो पुल बैक का वेट करो, और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो भी थोड़ा मतलब पुल बैक के लिए वेट करो, या ऊपर जाके नीचे आए तो वेट करो। मैंने और चार्ट अपडेट किया था टेलीग्राम पे विच वॉज दिस वन, मैं एक यहाँ से पुल बैक देख रहा हूँ और फिर अपसाइड जाए। ये अगर इसको हम लोग कंसिडर करें तो प्राइस में एग्जैक्टली वहीं से हमें एक बाउंस देखने मिला है विच वॉज दिस। हमने ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क करके रखा था, प्राइस ने इसको टैप किया, अभी पुल बैक ले रहा है। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो डेफिनेटली थोड़ा नीचे आने की कोशिश करें यहाँ तक, और फिर यहाँ से एक बाउंस देखने मिलेगा, बट फ्लैट ओपनिंग की पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो वीकेंड है इसमें एक बड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है मार्केट में, और मार्केट एक अच्छा रैली हमें दे सकता है आने वाले वीक में। राइट नाउ आई एम सुपर बुलिश इन निफ्टी कंसिडरिंग द लेवल्स, द वे प्राइस इज रिएक्टिंग which we have discussed right now. Also, the kind of news and rumors spreading in the market, out of which mostly are to create the panic so that big players can make their own positions on the upside. अब रही बात इन्वेस्टिंग की, देखो मार्केट अच्छा खासा फॉल हो चुका है, ठीक है, यहाँ से और शायद फॉल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अब वो छोटे फॉल का अगर आप वेट करोगे कि मार्केट थोड़ा और शायद नीचे आ जाए हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो वो बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है। यहाँ से मार्केट आ भी सकता है नीचे, बट आने के बाद अच्छा खासा बाउंस भी देगा हमें। ठीक है, मार्केट या फिर यहाँ से नीचे और नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से घूम जाए साइड पे। कुछ कुछ सेक्टर्स अगर आप देखो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गए,
अब कौन से सेक्टर्स है मैं प्रॉपरली स्टॉक्स के नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो मैं एडवाइस नहीं दे सकता आपको बाय या सेल की, ना ऑप्शंस की ना इक्विटीज़ की। मैं अपना बस एक व्यू शेयर कर सकता हूँ। कौन से सेक्टर्स है जिसमें आप प्लान कर सकते हो इन्वेस्ट करने में। देखो, एक है एनर्जी सेक्टर। ठीक है, एनर्जी सेक्टर्स में जैसे रिलायंस एनर्जी है, या जो आप मिड कैप देखो, स्मॉल कैप देखो उसमें, या फिर कुछ लार्ज कैप देखो, उस अकॉर्डिंग अपने फंड्स को एलोकेट करो। एनर्जी सेक्टर हो गया। दूसरा, आने वाले टाइम पे ईवी सेक्टर जो है, कुछ अगर ईवी के स्टॉक्स अगर मुझे मिलते हैं मैं डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, ईवी सेक्टर्स हो गए, या फिर रिन्यूएबल एनर्जीज है, ग्रीन एनर्जी है, इन सब के ऊपर आप जा सकते हो। ग्रीन एनर्जी हो गया, एनर्जी हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो बैटरी के स्टॉक्स है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में अगर कंपोनेंट वाले जो होते हैं, जैसे एक्साइड बैटरीज, अमर राजा बैटरीज, ये सारे जो स्टॉक्स हैं उनको एक बार आप देख सकते हो। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। देन सेकेंड होता है मेटल सेक्टर। देखो, मेटल सेक्टर ना थोड़ा साइक्लिकल होता है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेटल सेक्टर का जो बुलिश साइकिल है यहाँ से हमें देखने मिल सकता है। इसका बूम एंड बस्ट पीरियड होता है, इस तरह से चलता रहता है वो मेटल सेक्टर, बूम एंड बस्ट पीरियड में। तो अभी हम लोग समवेयर हियर है, यहाँ पे कहीं तो है मेटल सेक्टर के। तो एक बार मेटल सेक्टर को आप देख सकते हो। मेटल सेक्टर में आप ट्रेड मतलब अपने इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। दूसरे सेक्टर जैसे एफएमसीजी सेक्टर्स हो गए। ये एफएमसीजी सेक्टर में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर इन्फ्लेशन आता है, कंसिडरिंग द जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है और भी जो इश्यूज क्रिएट होने वाले हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बहुत कुछ होगा, बट लोग खाना खाना और बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें यूज़ करना नहीं छोड़ते। ठीक है, मे बी इसमें इनलास्टिक और इलास्टिक गुड्स होते हैं जो रेट के साथ डिमांड जिनका बढ़ते रहता है, और किस किस का रेट के साथ डिमांड नहीं बढ़ता है। तो वो आपको इन डेप्थ अगर है आइडिया उन चीज़ों का तो ही इनमें हाथ डालो। बट आई वुड से कि एफएमसीजी सेक्टर्स में स्पेशली जो शुगर सेक्टर है, मतलब बेसिकली आपका रेणुका शुगर हो गया, बजाज हिंदुस्तान हो गया, बलरामपुर चीनी हो गई, ये सबको एक बार आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी स्कोप अच्छा है। जो एग्री प्रोडक्ट्स है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, कंज्यूमर गुड्स में बेसिकली, क्योंकि उनका डिमांड बढ़ सकता है, तो एक बार उनको एक बार देख लेना। पर्सनली कुछ कुछ स्टॉक्स है मैं शॉर्टलिस्ट करने वाला हूँ कि किस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते हो। बट डोंट जस्ट रिलाई ऑन माय एडवाइस और सजेशन। ठीक है, आप अपना एनालिसिस करो थोड़ा, और अपने जो आपके एडवाइज़र रहेंगे फाइनेंशियल, उनसे आप एक बार एडवाइस ले सकते हो। एंड ट्राई टू इन्वेस्ट मनी इन गुड स्टॉक्स, क्योंकि अच्छा फॉल मिला है। ऑल्सो आई वुड से कि ट्राई टू इन्वेस्ट इन सिल्वर एंड गोल्ड ऑल्सो। जितना हो सके आप फिजिकल सिल्वर, फिजिकल गोल्ड, क्योंकि गोल्ड पे अच्छा खासा प्राइस का नीचे आया है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो गोल्ड आप फिजिकली आप बाय कर सकते हो, सिल्वर बाय कर सकते हो, विच इज़ अ गुड टाइम राइट नाउ, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर इकोनॉमी में जो चेंजेस हो सकते हैं, अगर इन्फ्लेशन आ सकता है, तो उस पॉइंट पे ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगी, इनके रेट्स भी बढ़ जाएंगे। और कल चल के देखो, करेंसी की वैल्यू कभी भी डिप्रिशिएट हो सकती है। ठीक है, आप करेंसी पे इतना 100% रिलाई नहीं कर सकते। तो आई वुड से कि थोड़ा बहुत आप गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट करके रखो, इट विल हेल्प यू अगर आपके पास है फंड्स तो। रेस्ट आई थिंक काफ़ी हमने कुछ डिस्कस कर लिया है फॉर नेक्स्ट वीक। आने वाले टाइम पे किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे, अगर इसके अलावा कुछ और चीज़ होती हुई दिखती है, वीकेंड पे कुछ चीज़ें चेंज होती है, डेफिनेटली मैं अपडेट करूँगा। ऑल्सो लाइव मार्केट में भी मैं अपडेट करूँगा, तो स्टे ट्यून विथ मी। ऑल्सो एक पॉइंट ये था कि मैं बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप में डाल रहा हूँ। सो लीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट इज़ अ रिएक्शन फ्रॉम योर साइड, सो दैट कि मैं जो भी चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, अगर वो इंटरेक्टिव रहा आपकी तरफ से, मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आ रही है, इफ़ आई एम एबल टू आंसर योर क्वेरीज, तो वो इंटरेक्टिव सेशन चलता रहेगा, तो वी कैन बिल्ड दिस कम्युनिटी। वो नहीं रहेगा वन साइडेड, मैं चीज़ें पोस्ट करता जाऊँगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आई एम डूइंग इट फॉर लर्निंग पर्पज़। कोई चार्ज नहीं कर रहा आपका, इससे टेलीग्राम पे मैं फ्रीली सारी चीज़ें डाल रहा हूँ।
इवन मुझे कुछ कुछ क्वेरीज पर्सनली आती है व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम या यूट्यूब के थ्रू, तो मैं पर्सनली भी उनको एड्रेस करता हूँ. तो इफ़ आई एम taking efforts to provide you the knowledge, so in return I'm just expecting an acknowledgement from your side, and that's it. So let's close the session for today. Thank you.